God bless you, my people. परमेश्वर आपको आशीषित करे मेरे लोगों. Somebody shout and say amen. कोई आमेन बोले. Hallelujah. See, God never fails. परमेश्वर कभी नहीं हारता. God never, leaves our. नहीं छोड़ेगा. परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे. Say hallelujah. Maybe you're a sinner. हो सकता है कि आप एक पापी हो. Maybe you're away from God. हो सकता है परमेश्वर से दूर हो. But God never, away from you. पर परमेश्वर कभी भी आपसे दूर नहीं होते. God loves you. परमेश्वर को आपसे प्रेम है. And tell to your neighbor, God loves you. और अपने पड़ोसी को देख के बोले कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं. Amen. Okay. God never leaves you. God never, neglect you. परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ते. वो आपको कभी नहीं त्यागते हैं. Fear. डर. The word says fear. It's not a feeling and something has happened in your body. और वचन कहता है कि जो डर है वो कोई भावना नहीं है. या ऐसा नहीं कि आपके शरीर में कुछ हो रहा हो. Oh, the word says it's a spirit. वचन कहता है कि वो एक आत्मा है. It's a spirit. We have to resist the spirit. और ये एक आत्मा है और हमें इस आत्मा से दूर होने की जरूरत है. How many people are with me, my people? कितने लोग मेरे साथ हैं मेरे लोगों. Say hallelujah. हालेलुया. You can read Psalms chapter 23. आप पढ़ सकते हैं भजन संहिता उसका 23वां अध्याय. Or chapter 23 verse 4. 23वां अध्याय उसका वचन चौथा वचन. Anyone read? Yeah. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है. Say hallelujah. तू मेरे साथ रहता है. Even though I walk through the valley of the shadow of the death, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर I will चलूं not fear the evil और मैं नहीं डरूंगा because you are with me. क्योंकि तुम मेरे साथ है. Say hallelujah. In Jerusalem you can see, out of the, compound there is a lot of, graveyard is there. और आप यरूशलेम में देख सकते हैं कि जो कंपाउंड के बाहर बहुत सारे वो कब्रिस्तान हैं. Kabristan. Anyone walk through the alone, they will get fear. और अगर कोई भी वहाँ पर अकेला जाएगा तो उसको डर लगेगा. Okay, it's kind of valley. वो एक तराई की तरह है. Right there. The word clearly says when we visited that, then we understand that this word. वचन साफ साफ कहता है कि जब हम वहाँ पर होंगे तब हम इस वचन को अच्छे से समझ पाएंगे. Word says even though I walk through the valley of the shadow of the death, वचन कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में I होकर will not चलूं. fear. The word says I will not fear because you are with me. वचन कहता है कि तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है. Say somebody shout and say hallelujah. God did not say you would stay in the valley. और परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम उस तराई में ही रहोगे. Right. But he said you walk through the valley. पर परमेश्वर ने कहा कि तुम उस तराई में से होकर गुजरोगे. गुजरेंगे. Okay, because we are living in this world, we have to go through the valley of some situations. हम इस दुनिया में रहते हैं और हमको उन घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से होकर गुजरना ही पड़ेगा. Sometimes our mind says, fear says, actually fear speaks to you. और सच बात बोलूं तो कि जो डर है वो आपसे बात करता है. बात करता है. If you're sleeping, alone in a bed, one side you are crying, the spirit of fear, it is talking to, and something, murmuring, something, whispering to your ears. और जब आप सो रहे होते तो कई बार ऐसा होता है कि आप एक करवट लेके रो रहे होते हैं और वो डर जो है वो आपसे कुछ ना कुछ बात कर रहा होता है. वो आप कान में फुसफुसा रहा होता है. What is the whisper? और वो फुसफुसाना क्या है? You will, die. तुम मर जाओगे. Then you will, stay in the same place. और तुम उसी जगह पे रह जाओगे. You will not grow. तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे. Your life is zero. तुम्हारा जो जीवन है वो शून्य है. Then your house is like that only. तुम्हारा घर ऐसे ही रहेगा. Your children like that only. तुम्हारे बच्चे ऐसे ही रहेंगे. You will not get, come up the higher level. तुम ऊंचे स्तर पर नहीं बढ़ पाओगे. Because the fear, speaks something in your ear, my people. क्योंकि जो डर है वो कुछ ना कुछ आपके कानों में बोलता है. Don't hear. That's why the word says, fear, it's a condemn you. That means it's kind of punishment. जो डर है वो वचन कहता है कि डर एक तरह से आपके लिए दंड है. If you experience with it fear every day by day, then you become the fear become a pet of your life. Pet. अगर आप दिन ब दिन जो डर है उसका अनुभव करते रहेंगे तो वो जो डर है वो आपके जीवन में एक पेट के समान बन जाएगा. मतलब कि जैसे हम उसे पालते हैं ना, जानवरों को पालते हैं,
तो वो भी आपके लिए, आप उसे पाल लेंगे उस डर को। It's actually usual हो जाता है, okay? It's usual. When you go to the bed, automatically the pet will jump into you. और जब ये आपके लिए बहुत सामान्य हो जाएगा और जब भी आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएंगे तो वो डर आपके पास कूद के आएगा। In the spirit, in the pet, it is something the whispering. और वो जो डर की जो आत्मा है जिसको आपने पेट बना लिया है वो आपके कान में कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। Say hallelujah. That I tell you, but the word says, मैं आपको बताता हूँ कि वचन क्या कहता है। fear not, डरो मत, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। Only believe, fear not. डरो मत। That means your current situation is not in your destination. और जो आपकी जो अभी की जो परिस्थितियां हैं वो आपकी मंजिल नहीं है। मंजिल नहीं है, अभी तो दिख रहा है ना, वो आपका सीमा नहीं है। You're going to beyond. आप उसके आगे जाएंगे। सामान्य मान आगे जाएंगे, बोलिए आगे जाएंगे। You have to overcome the faith, my people. और आपको डर से आगे, आपको डर से उभरना पड़ेगा मेरे लोगों। Yeah, it's maybe it's your hurts, it gets stretching your life. The fear, it's get late in stretching your life. हो सकता है कि वो जो डर है वो आपके जीवन में जो चीजें हैं उनको बहुत खींच रहा हो। But it's not a lost. मगर वो खोया नहीं। Okay, yeah, it's not lost. That means ये अंत नहीं है। Yeah. ये आपके जीवन का अंत नहीं अंत है। नहीं है। Something is there. Something's waiting for you. कुछ बड़ा आपके लिए, अद्भुत आपके लिए इंतजार कर रहा है। Because the word says, I preach about this, in 2 Timothy. God's not given a spirit of fear. God has given a spirit of power, love, and a sound mind. और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि परमेश्वर ने आपको डर की आत्मा नहीं दी है, पर उसने आपको प्रेम की, सामर्थ्य की और संयम की आत्मा दी है। Amen. Can you shout and say, I don't have a spirit of fear, I have a spirit of power and love and a sound mind. क्या आप में से कोई खड़ा होकर चिल्लाकर ये बोल सकता है कि मेरे पास डर की आत्मा नहीं है, मेरे पास सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा है? Thank you. धन्यवाद। आत्मा है। Anyone stand up and shoutly say amen, hallelujah. कोई खड़ा होकर बोले आमेन, Hallelujah. आमेन, आमेन। You believe word, my people. आप वचन पे विश्वास रखते हैं मेरे लोगों। Don't hear the whispering, the spirit of fear word. और वो जो डर की आत्मा की वो फुसफुसाने को मत सुनिए। Amen. मत सुनिएगा। Meaning it speak to your mind. वो आपके दिमाग में बातें करता है। It's like a chain. वो एक बेड़ी की तरह है। It's maybe a bond. हो सकता है कि वो आपके लिए बंधन हो। बंधन होगा. Okay, don't hear the word. उसके वचन को मत सुनो। Another side, the God is speaking to you. और दूसरी तरफ परमेश्वर आपसे बात करते हैं। God is speaking to you. ओ परमेश्वर आपसे बात करते हैं। The devil gives only fear. और शैतान सिर्फ डर देता है। But God is giving a power. पर परमेश्वर आपको सामर्थ देता है। Then love. प्रेम देता है। Then the sound mind. संयम देता है। Somebody shout and say hallelujah. कोई बोले हालेलुया। You may be seated, please. आप सभी बैठ सकते हैं। Word never fails. तो वचन कभी नहीं हारता। Word never fails. वचन कभी नहीं हारता। Amen. The manly word, the people's words get failure. और जो मनुष्य की जो बातें हैं, जो चीजें हैं वो हमेशा हारती हैं। But the word of God never says fail. मगर परमेश्वर का वचन कभी नहीं हारता। Say hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Somebody shout and say hallelujah. कोई बोले हालेलुया। Oh, hallelujah. You have a progress. वो आपके जीवन में एक विकास है। That progress is not a decrease. Your progress is higher. और वो जो आपकी जो विकास है वो कम नहीं होगा, वो आगे ही बढ़ेगा। Hallelujah. God is walking with you. परमेश्वर आपके साथ चल रहे हैं। He is not leaving you in वो the आपको darkness. नहीं छोड़ रहे। Even though you are going through the valley, but God is standing. Sometimes you feel, nothing. I'm feeling. I'm not feeling God's presence. I'm not feeling. I am alone. Why I'm going through the, only me. I'm going through this way. But I'm saying, no. God is always with you. हो सकता है कि आप किसी तराई में से होकर गुजर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि अरे ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों उस तराई में होकर चल रहा हूँ। मगर ये मानिए कि सच में परमेश्वर आपके साथ है, उस तराई में भी प्रभु आपके साथ है। Maybe it give a pain to your heart. That means you are thinking more. When the anxieties gives paralyze you.
और हो सकता है कि आपके दिल में वो बोझ हो और वो आपको एंजाइटी देता हो और इस चीज की वजह से आपके जीवन में पैरालाइज जैसी सिचुएशन आ जाती हो। Then God is saying, you have to overcome that, my place. परमेश्वर कहता है कि आपको उन चीजों से उभरना होगा। Say hallelujah. That's why God said, cast your all the burdens and anxiety unto Jesus. इसलिए वचन कहता है कि अपना सारा बोझ, सारी चिंता प्रभु यीशु पे डाल दो। 1 Peter 5, 7 and 8 verse says, पहला पत्रस no, don't read, don't just translate. 1 Peter 5, 7 and 8 says, पहला पत्रस उसका 5, 7 और 8 ऐसे कहता है, casting all your problems and anxiety unto God. अपने सारे बोझ को प्रभु यीशु पे डाल दो। Daldo means, I said, last Sunday also I said, the cover, yeah. And so, it's casting, it's not in a normal way. It's a Roman, the original, Greek word is different. और परेशानी को डाल देने का मतलब ऐसा नहीं कि आपने ऐसे ही डाल दिया, पर यूनानी परेशान को ऐसे परमेश्वर के पास, प्रभु आपके पास मैंने परेशानी को रख दिया है, not like that. ऐसा नहीं है कि प्रभु मैंने अपनी परेशानी यहाँ रख दी है, ऐसे नहीं है। ओके, जो आपका जीवन में कोई गुस्सा में घर के अंदर जाके पूरा फेंक देंगे, कभी हुआ? अरे पवित्र लोग हैं। कभी हुआ? मुझे ये काम नहीं चाहिए, हुआ ना? That's the way God saying casting means, it's original Greek word says, is throwing violently. इसी प्रकार से परमेश्वर कहता है, और यही यूनानी शब्द में ऐसे कहा गया है कि किसी भी चीज को एकदम बुरी तरह से फेंक देना। Your worries, आपकी चिंताएं, your worries, आपकी चिंताएं, your anxiety, आपकी एंजाइटी, God said throw, परमेश्वर कहता है कि उन्हें फेंको, violently बुरी तरह से उन्हें फेंको, violently throw to me. उन्हें बुरी तरह से मेरे पास फेंको। कौन सा परमेश्वर ऐसा कह सकते हैं? कौन सा परमेश्वर ऐसा कह सकते हैं? आमेन भी नहीं है, ऐसा बोल सकता है, मेरा परेशानी मुझे नहीं चाहिए, चलो। You understand? Throwing violently. ओ उसको बुरी तरह फेंक दो, throwing violently. उसको बुरी तरह से फेंको। And the cast, don't want. सारी परेशानियों को ऐसे फेंक दीजिए, मुझे नहीं चाहिए परेशानी, इन्हें फेंको। Jesus. ओ उन सब चीजों को यीशु पे फेंक दो। Because the word says He cares for you. क्योंकि वचन कहता है कि वो तुम्हारा ख्याल रखता है। Cares for you. Say वो आपका ख्याल करता है। Say again. उसे तुम्हारा ख्याल है, उसे तुम्हारा ख्याल है। परमेश्वर को आपका ख्याल है, परमेश्वर को आपका ख्याल है, परमेश्वर को आपका ख्याल है, वो आपका ख्याल रखता है, वो परमेश्वर आपका ख्याल रखता है। 1 John 5, 18 and 19 verse says, पहला यूहन्ना chapter 5, 18 and 19. 5वां अध्याय उसका 18 and 18वां और 19 19वां वचन says, there is no fear in the perfect love. और सिद्ध प्रेम में कोई डर नहीं है। सिद्ध प्रेम में क्या नहीं है? Read it. हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। 1 John chapter 5, 18 and 19. Okay. Is it correct? Play. 1 John पहला यूहन्ना chapter 4 उसका चौथा अध्याय and 18, 19. उसका 18वां और 19वां वचन। प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। सिद्ध प्रेम भय को क्या कर देता है? दूर कर देता है। The word says, the perfect love, resist the, fear. और वचन कहता है कि सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। आप लोग बोलिएगा, सिद्ध प्रेम। सिद्ध प्रेम। If you love God, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, what is the meaning of love God? परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या है? That means fear of God. इसका मतलब है परमेश्वर का भय रखना। You fear for God. अगर आप परमेश्वर से भय रखते हैं, that means you love God. इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते That हो। is the quotation mistake.
और ये कोटेशन की जो गलती है, गलती क्या है ना, हम परमेश्वर को पास डरते नहीं है, बट दुनिया में सब चीज को डरते हैं। मैं सही बोल रहा हूं? पाप करने में कोई डर नहीं लगता है, बट कुछ अच्छा चीज करने में डर लगता है। मैं सोचता हूं, डर लगता है मुझे। You understand? This is the world. The world is manipulating the world. और जो ये दुनिया, ये जो दुनिया है, ये वचन को तोड़ मरोड़ कर आपको बताती है। बताता है। So always the world is teaching, manipulating the word to you. और जो दुनिया है, जो दुनियावी चीजें हैं, वो हमेशा आपको चीजों को तोड़ मरोड़ कर ही But the बताएंगी। word of God is crystal clear. पर जो परमेश्वर का जो वचन है, वो बिल्कुल साफ और शुद्ध है। Are you with me, my people? क्या आप लोग मेरे साथ हैं, मेरे लोगों? Say hallelujah. Somebody shout and say hallelujah. कोई बोले हालेलुया। Oh, wonderful. I'm so happy about this. So, मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। if you love God, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते that हैं, means you have a fear of God. इसका मतलब है कि आपके अंदर प्रभु का भय है। You have a siddh prem. अगर आपके अंदर सिद्ध प्रेम That है, means you have a siddh fear of God. इसका मतलब है कि आपके अंदर परमेश्वर के लिए सिद्ध भय भी है। है भी है। है भी। If you have a fear of God, अगर आपके अंदर प्रभु का भय है, then you have a fear of, that you have a perfect love. इसका मतलब है कि आपके अंदर प्रभु के लिए सिद्ध प्रेम भी The है। perfect love resists the devil. और जो सिद्ध प्रेम है, वो भय को दूर कर देता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Because his love is, agape. It's a divine love. क्योंकि जो उसका प्रेम है, वो अद्भुत प्रेम है। कितने लोग मेरे साथ है? Hallelujah. 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 Somebody says, say loudly, I am free from fear. कोई जोर से बोले कि मैं डर से आजाद हो चुका हूँ। Amen. Somebody, our mind says fear is a part of life. हमारा मन कहता है कि जो डर है, वो तो जीवन का एक हिस्सा है। Somebody, thinking the fear is the part of our part. Body part. कोई ये भी सोच सकता है कि जो डर है, वो हमारे जो शरीर का एक हिस्सा है। हिस्सा है, शरीर का एक हिस्सा। But Bible never says. पर वचन ऐसा कभी नहीं कहता। The fear is where it's come from. डर कहाँ से आता है? It's come from God. क्या ये परमेश्वर से आता है? Maybe it's come from the Holy Spirit. क्या ये पवित्र आत्मा से आता है? It's come from the Word. क्या वो वचन से आता है? It's from heaven. स्वर्ग से आता है? No, my people. नहीं मेरे लोगों, It's come from Spirit. ये इस आत्मा से आता है। कहाँ से? आत्मा. The word says this is fear, the Spirit. वचन कहता है कि जो वो डर है, वो एक आत्मा है। आत्मा है. If you resist the Spirit, अगर आप इस भय की आत्मा से दूर होते हैं, then he will flee. That means fly. तो शैतान आपसे दूर हो जाए। दूर हो जाए. हालेलुया। Oh, Rababa Kana Shikanada. अन्य भाषा में, all the people, everybody speak out. Everybody speak out. अन्य भाषा में प्रार्थना करें। Come on, speak out. Reyandana Shandana. Rebeyandana Diandra Baladura. Reyandra Baladianduru Shigiandura. Shigiandura Baladura Bara. Ye andara baladura bara bara baladiandura baladura bara bara baladiandura baladura bara baladura bara baladura bara baladura bara. Hallelujah. Hallelujah. Oh, the Spirit, when you're speaking in tongues, my people, जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं, the Spirit of God is filling with you. परमेश्वर का जो आत्मा है, वो आपको भरता है। It's filling your spirit, soul and body. वो आपके मन को, आपके प्राण को, आपके आत्मा को भर रहा I है। said the fear is a spirit. मैंने कहा डर एक आत्मा है। It speaks to you. It's kind of whispering sounds. वो आपसे बात करता है, वो आपके It कानों में goes to- फुसफुसाता है, It goes to your mind. वो आपके मन में जाता है। Then you are meditating there. फिर आप उस पे मनन करने लगते Then हो। automatically it paralyzes you. फिर वो अपने आप आपको जैसे Paralyze. पैरालाइज कर देता हो, लकवा जैसे कि लकवे जैसी परिस्थिति को कर देता हो कर अपने देता जीवन है. में। Because fear क्योंकि डर is very dangerous. वो बहुत खतरनाक है। Don't play with poison, snake.
don't play with fear. डर के साथ मत खेलिए. The fear is a poisonful snake. क्योंकि जो डर है वो एक जहरीला सांप है. है? No, pastor. मैं परमेश्वर को भी भय करता हूं. और दूसरा, take it 1 tumbler with a 90% sugar and water and just 1% poison. You will drink? No, because the one drop of the poison is it's corrupt all things. क्योंकि एक बूंद भी जहर की अगर आप अपने अंदर ले लेते हैं तो वो One आपके drop, सब चीजों को one खराब drop कर of fear, it's corrupt your life. देगी. एक डर की जो बूंद है वो आपके जीवन को खराब करती खराब है. करेगा. Be careful. बहुत ध्यान पूर्वक रहिए. Christian lives always encourage you. मसीह जीवन आपको हमेशा प्रोत्साहित It करेगा. gives good life. वो आपको हमेशा एक अच्छा जीवन देगा. That's why God said, I am the way, I am the life, truth and इसलिए life. परमेश्वर कहता है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ. Hallelujah. You have to resist. आपको उससे दूर होना होगा. नहीं, resist, दूर नहीं, विरोध करना होगा. आपको उसका विरोध करना होगा. विरोध करना होगा. किसको? डर के आत्मा को क्या करना है? विरोध. Take with me book of James chapter 4 verse 7. याकूब की पुस्तक Chapter 4 verse 7. चौथा अध्याय 7वां वचन. इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा. Oh, wow, wow, amen. ये इस वचन के लिए ताली तो बजाना था. Hey! Anyone read in English? Anyone read in English? Hallelujah. Yes. Wonderful. God is speaking to you, my people. परमेश्वर आपसे बात कर रहा है मेरे लोगों. Spirit of God is speaking to you. परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है. Presence of God is here. प्रभु का उपस्थिति यहाँ पर है. Yes, go ahead. पढ़िए. Therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Yeah, he will fly. और वो तुमसे दूर हो जाएगा. वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा. So submit to God. That's very important. Therefore, submit to God. परमेश्वर के अधीन होना बहुत जरूरी है. So before the resist the devil, शैतान को भगाने से पहले and the word says, therefore, वचन submit कहता to God. वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ. That is the submit to God is everything. Submit to God. परमेश्वर के अधीन होने का मतलब है कि सब चीजों में प्रभु के अधीन होना If है. you're doing sin, अगर आप पाप करते हैं that means you are not submitting God. इसका मतलब आप प्रभु के अधीन नहीं हो. Automatically, if you feel, if you do sin, automatically fear, spirit will come. अगर आप पाप करते हैं तो अपने आप ही डर की आत्मा आपके Because पास it आएगी. started from Adam. क्योंकि वो आदम से आई. When Adam did sin against God, जब आदम ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, the evening time the God is coming, the God's presence is coming. Hey, Adam, where are you? शाम के समय में प्रभु की उपस्थिति इनके बीच में आए. प्रभु ने बोला कि आदम कहाँ हो तुम? Then Adam saying, Lord, I get fear. आदम बोलता है कि वो परमेश्वर मुझे डर लग रहा है. Because he did against God. क्योंकि उसने प्रभु के विरोध में काम किया. That's why the word says, therefore submit to God. इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन रहो जाओ. If you are not doing sin, अगर आप पाप नहीं करते हो then you can resist the devil. तो ही तो आप शैतान का विरोध कर सकते हो. Amen. Say hallelujah. You are doing sin again and again, then you are resist the devil, you will fall. अगर आप पाप बार बार करते जाएंगे तो फिर You will fall. तो आप गिर जाएंगे, आप हार जाएंगे. हार जाएंगे. Somebody said amen. Hallelujah. Perfect love resists the fear. और सिद्ध प्रेम वो डर को दूर करता है. I tell you, मैं आपको बताता हूँ. the one policeman, traffic policeman, एक ट्रैफिक पुलिस वाला, okay, is wearing all the uniform. वो अपनी पूरी यूनिफॉर्म में था. He submit to government. He submit to government. और वो सरकार के अधीन था. He's wear badge. उसने topi. बैच लगाया हुआ था, टोपी पहनी हुई थी. Maybe he's 6 feet हो सकता है वो 6 फुट का होगा, and 100 kg. 100 किलो का होगा. White, powerful guy. और वो शक्तिशाली एक आदमी था. And he's standing on the road, अब वो सड़क पे खड़ा था. the center of the road, the 4 line. अब वो जो चारों दिशाओं से जो रोड आ रही होती है उसके बीच The में big वो खड़ा truck is था. coming. और वो बड़ा ट्रक सामने से आ रहा Then था. he said, stop. उसने बोला रुक जाओ. What will happen? क्या होगा? The truck will stop.
ट्रक रुक जाएगा, The giant's truck will stop. वो बड़ा ट्रक रुक जाएगा। Why? क्यों? Somebody said, why? कोई बोले क्यों? Kyun? Because policeman. क्योंकि पुलिस वाला वहाँ पे है। Because he is 6 feet and 100 kg? क्योंकि वो 6 फुट का है और उसका वजन 100 किलो है इसलिए। No. Because he have authority. क्योंकि उसके पास वो अधिकार है उसे रोकने का, Another said he have a power. और उसके पास सामर्थ भी है। Amen. सामर्थ है. Because his background क्योंकि जो उसका बैकग्राउंड है is government. वो सरकारी है। Hey. Amen. I tell you, मैं आपको बताता हूँ, you resist the devil. अगर आप शैतान का सामना करें, You have power. आपके पास सामर्थ है। Amen. Your Sakka, आपकी जो सरकार है the heaven, वो स्वर्ग है। is behind you. Hey, somebody whistle and say, hey. मैं Holy Spirit of God. That's why God said, I'm not given a spirit of fear. Instead of the fear spirit, God is giving a power, love, and sound mind. इसलिए परमेश्वर कहता है कि इन्होंने कभी भी हमें डर की आत्मा नहीं दी है, मगर इनकी जगह उसने हमें 3 चीजें दी हैं, संयम, सामर्थ और प्रेम। Hallelujah. ऐसे हाथ उठाइए. I have a spirit of love and power and love. हाथ उठा के बोलेंगे कि मेरे पास प्रेम का आत्मा है, मेरे Speak to पास God. सामर्थ Speak की to आत्मा God. है, Speak to God. मेरे पास संयम Speak की to God. आत्मा है। I am not a failure one. मैं हारा हुआ नहीं हूँ, I am not a failure one. मैं हारा हुआ नहीं हूँ, My destiny is not this. और मेरी किस्मत यहाँ पे नहीं है, या नहीं है, this level नहीं है. मेरी डेस्टिनी यहाँ पे नहीं है, Amen. इससे ऊंचे स्तर पर है। Oh, the Spirit of God. Oh, the Spirit of God. I have a power. ओ मेरे पास सामर्थ है, I have a power. मेरे पास सामर्थ है, I have a power. मेरे पास सामर्थ I है, have a power, love and sound mind. ओ मेरे पास संयम, सामर्थ और प्रेम की आत्मा है। Oh, rabadara shandara nadara nadara. हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड। प्रभु मेरे पास संयम की आत्मा है, मेरे पास प्रेम की आत्मा है, मेरे पास सामर्थ की आत्मा है। I feel the heavy presence of God in this place. मैं यहाँ पे प्रभु की भारी उपस्थिति को महसूस कर सकता हूँ। Are you feel this? क्या आप इसको महसूस कर पा रहे हैं? Are you feel this? क्या आप इसको महसूस कर Are you सकते हैं? encouraging by the word क्या आपको वचन से प्रोत्साहना मिली or discouragement? या आपको डिस्करेजमेंट मिली? Right? Encouragement हो रहा है. प्रोत्साहित हुए? I tell you, I am not a motivation speaker, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं कोई सकारात्मक बातों को बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, but I am speaking the word of God. पर मैं परमेश्वर के वचन को बोलता हूँ। Hey, amen, hallelujah. I'm not giving a motivation speaker. Yeah, you, no, not like that. मैं You कोई follow the motivation- word, then only you will get. मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, आप सिर्फ वचन को पढ़िए तब आपको जीत हासिल होगी। Amen. Resist the devil means you are. Don't think I am a very, powerful guy. That means you are very strength and muscle guy. और शैतान का सामना करने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत शक्तिशाली इंसान होंगे या आपकी हाइट अच्छी होगी, आपकी बहुत मसल्स होंगे, ऐसा कुछ इसका मतलब नहीं है। नहीं है. Then how can resist? तो हम उसका सामना कैसे कर सकते हैं? Resist means stay in the word सामना करने का मतलब है कि वचन में रहना and speak the word, the और- particular situation. और वचन को बोलना उस परिस्थिति के ऊपर, Then act like a Bible. और बाइबल के अनुसार एक्ट कीजिए, Speak like a Bible. वचन के अनुसार बात करें। Word says, fear not. वचन कहता है कि मत डरो। You know the fear not, this word is not like that saying. It's a commandment. डरो मत करके ऐसी कोई सामान्य बात नहीं कही गई है, वो एक आज्ञा है। आज्ञा है. आज्ञा है. God saying, hey, don't fear. परमेश्वर कहता है कि हे मत डरो। मत डरो. In the Bible, बाइबल में wherever the supernatural happens, जहाँ पर भी अलौकिक चमत्कार हुए, then supernaturals and comes and encounter to the natural people. जब First of all- अलौकिक आता है और जब वो The supernatural, whenever the supernaturals, come and touch the natural people, natural world people, जब भी अलौकिक चमत्कार नीचे आता था और जब भी वो मनुष्य से मिलता था, the first word, fear not. तो पहला वचन होता था कि मत डरो। The angels speak to, Joseph, fear not. और स्वर्गदूतों ने यूसुफ से कहा मत डरो। Eh?
The angels speak to, Maryam, fear not. और स्वर्गदूतों ने मरियम से कहा मत डरो। God said to Abraham, fear not. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मत डरो। God said to Abraham and Isaac, fear not. परमेश्वर ने इसाक से भी कहा कि मत डरो। God said to Joseph. परमेश्वर ने यूसुफ से कहा मत God said to डरो। Daniel. परमेश्वर ने दानियल से कहा, God said to Joseph. यूसुफ से Joseph, कहा। powerful guy. God said to Moses. परमेश्वर ने मूसा से कहा, God said to Elijah. उसने एलीजा से कहा। The same God saying to us, और वही परमेश्वर हमसे कह रहा है, fear not. मत डरो, Fear not. मत डरो, मत डरो, मत डरो, Fear not. मत डरो, Fear not about your future. मत डरो, भविष्य के लिए मत डरो, Fear not your future. अपने भविष्य के लिए मत डरो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. I just give a pickle. I just give a pickle. अचार मैंने दिया सिर्फ मैंने। अचार दिया है, अचार दिया, जो मेन कोर्स बाकी है। हैं? अभी पूरा भोजन बाकी है। हैं? जो आप लोग जैसे मैं बोलूं तो ऐसे बोलना, अभी तो ट्रेलर है भाई, मेन पिक्चर है बात में। Come on, clap your hands and give God glory. ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। Because 365 times God said to fear not, fear not, fear not to everywhere. क्योंकि 365 बार परमेश्वर ने कहा है कि मत डरो, मत डरो, मत डरो, मत मत डरो, डरो, मत डरो, मत डरो, मत डरो, मत डरो, मत डरो, मत डरो, बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना। मत डरो, One- मत डरो, one second, मत second, डरो, second, second. मत डरो, भयपड़ा, मत डरो, भयपड़ा, मत भयपड़ा, डरो, भयपड़ा, मत डरो, मत डरो, भयपड़ा, मत डरो, मत डरो, भयपड़ा, मत डरो, 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 Hey, I'm gonna hallelujah. मत डरो, मत डरो, मत डरो, Oh, the Spirit of मत God. डरो, मत डरो, मत डरो, मत डरो। That's why Hebrew chapter 10, you can read Hebrew chapter इसलिए 10 इब्रानी 10वां अध्याय and 35 verse 35. 35वां वचन, Hebrew chapter 10 verse 35. इब्रानी उसका 10वां वचन, उसका 10वां अध्याय, उसका 35वां वचन। So how is going the series? ये कैसे, ये fear not series कैसे चल रहा है? ये निडर रहना, निडर वाली सीरीज कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छी। अच्छा लग रहा है ना? Yeah. Read out. Hebrew chapter 10 verse 35. Yeah. Therefore, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्या मत छोड़ना? हियाव नहीं छोड़ना। Put it in English. Therefore, do not cast away your confidence. इसलिए अपना हियाव न It छोड़ो, has greater the reward. क्योंकि उसका बड़ा प्रतिफल है। You have a confidence. आपके अंदर हियाव है। है? क्या है? क्यों? Because Yahweh है. क्योंकि यहोवा है। Come on. Hallelujah. You must have a word confident. You must have a word confident. आपके अंदर वचन का हियाव होना जरूरी है। You must read the Bible. आपका वचन को पढ़ना जरूरी है। Stay in the word of God. वचन में रहना जरूरी है। Speak like God. Speak like a Bible. वचन के समान बोलना जरूरी है। And stay confident on the word. और वचन में हियाव में खड़े रहना जरूरी है। Resist the devil means not resisting ऐसा नहीं है. Resist the devil means, confident on the word. शैतान का सामना करने का मतलब ये नहीं है कि एकदम अकड़ में आके हम उसका सामना करें, नहीं। God said to Moses, परमेश्वर ने मूसा से कहा, same God, वही परमेश्वर, same Spirit. वही आत्मा। Today morning I read the Bible. आज सुबह मैंने वचन को पढ़ा, God is speaking to me. परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था। Fear not. मत डरो, That's a confident my people. ये हियाव है मेरे लोगों। Come on, तालियां यीशु मसीह के लिए. The devil is searching and roaring lion is to eat you.
जो शैतान है वो आपको एक भूखे शेर की तरह फाड़ने के लिए ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, खाने के लिए ढूंढ रहा खाने है। के लिए ढूंढ रहा है, क्योंकि वो शैतान है। शैतान क्या करेगा? If you do sin, अगर आप पाप करेंगे, hey, this is the guy of believer. और ये विश्वासी He जन washed है, by the blood of Jesus. ये प्रभु यीशु के लहू के द्वारा धोया गया, He did a sin. उसने पाप किया, All the fear will come to you. सारा डर उसके पास आ जाएगा, Then you will be down, तो आप फिर नीचा महसूस करेंगे, down. डाउन हो जाएंगे। Day by day by day by day by day, when you were down, दिन ब दिन आप नीचे जाते you जाएंगे, are failure. आप हार जाएंगे, You lost your job. आप अपनी नौकरी खो देंगे, You are not finished your target in your office. आप अपने ऑफिस के उन टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाएंगे, Then you are not good name in the official. आपके फिर दफ्तर में अच्छा नाम नहीं रह पाएगा, People are playing your life. फिर लोग आपके जीवन के साथ खेलेंगे, The devil is laugh. फिर शैतान हंसेगा, Then you are become kamzor. फिर आप कमजोर पड़ जाएंगे, I am nothing. Automatically your mind says I am nothing. फिर आपका मन अपने आप कहेगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। Then one day people will. I could see yesterday one girl is come to me. So he said, there is no God. ऐसा मैंने कल देखा कि एक लड़की बोलती कि यहाँ कोई परमेश्वर नहीं है, Because I am going through this like this way. Only my life is going. Why? Because God is not there. क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं इस परिस्थिति से होकर गुजर रही हूँ, इसलिए कि कोई परमेश्वर नहीं है। I said no. मैंने कहा नहीं, God is there. परमेश्वर है। If we do sin, अगर हम पाप करते हैं then all the darkness will cover you. तो फिर All the सारा darkness. अंधकार आपको आके ढक लेगा। That's why the word says, therefore, इसलिए वचन कहता be है, confident on the word. हियाव से खड़े रहो। When you read Bible, जब आप वचन को पढ़ेंगे, resist the devil means resist the sin. और शैतान का सामना करने का मतलब है कि पाप का सामना करो। काम करो, सामना करो मतलब दूर हो जाओ, पाप से दूर हो जाओ, नहीं तो पाप आपको क्या करेगा? How many people are here? कितने लोग यहाँ पर हैं? Say hallelujah. हालेलुया, Say hallelujah. हालेलुया। Joseph, यूसुफ, he got a chance to do the sin, उसके पास मौका था कि वो पाप कर सकता था, but he didn't. मगर उसने नहीं किया। What is the reward of that? उसका क्या प्रतिफल है? He is the after the king. He was the after the king. और फिर वो राजा बना, After the king. और फिर वो राजा के बाद बना, Raja. He was the after the king position. और फिर उसको वो राजा के बाद वाली वो पोजीशन मिली। जोसेफ का बिना कोई हाथ भी नहीं उठा सकते, कोई हाथ नीचे। Why this क्यों? reward? ऐसे क्यों हुआ? That confident on the word. क्योंकि वो वचन में हियाव से रहता था। God spoke to you. परमेश्वर आपसे बात करेगा। नहीं, God spoke to you. परमेश्वर ने उससे बात की। नहीं, God spoke to you already. परमेश्वर आपको पहले से बात किया कुछ इसके बारे में, मैं कुछ करूंगा आपके लिए, आपका दर्शन के लिए कुछ करूंगा करके। God has already spoke to you. परमेश्वर आपसे पहले ही बोल चुके हैं। Be on that and confident the word. वचन के ऊपर हियाव बांध के रखिए। Don't give a place for the devil. शैतान के लिए जगह मत दीजिए। If you give a place, if you do sin, that means you are giving a place for the devil. अगर आप पाप करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप शैतान के लिए जगह The देते हैं। devil's army will cover your entire life, and you feel very, very, very weak in the spirit, soul, and body. फिर शैतान की जो पूरी सेना है वो आके आपके जीवन को ढक लेगी, फिर आप अपने जीवन में बहुत अकेला महसूस Suddenly you will करेंगे। lose everything. अचानक से आप सब कुछ खो देंगे। Suddenly you feel, hey, I'm not feeling God's presence. अचानक से आपको महसूस होगा कि अरे मेरे को परमेश्वर की उपस्थिति महसूस ही नहीं होती है। Everywhere failure. हर जगह आपको हार महसूस होगी। Every people are giving धोखा, हर cheating me. इंसान आपको धोखा देगा। Everybody is cheating me. हर इंसान मेरे को धोखा दे रहा है। Why? क्यों? You lost your place. क्योंकि आपने अपनी जगह को खो दिया। I tell you, मैं आपको बताता हूँ, even though you get a chance to do sin, हो सकता है कि आपको पाप करने का मौका मिले, maybe the God is testing you. हो सकता है परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हो। Be aware बहुत ध्यान से रहें and be strong और मजबूत रहें and resist the devil. Resist the sin. और पाप का सामना करें और उससे दूर हो जाएं। Then God will give a good reward to you. परमेश्वर फिर आपको एक बड़ा प्रतिफल देंगे। Come on, church. Can I get bored to you? आपको बोर लग रहा है मेरा प्रचार? नहीं है ना? Somebody shout and say hallelujah. Hallelujah.
सिर्फ अचार खा के आपको नींद आ रहा है क्या? और पूरा खाना है ना? पूरा खाना अगला तक मैं दे दूंगा। हालेलुया। Hallelujah. See, I am so excited. I told, when I preach about the book of, Revelation, I said what I preached, I'm standing on it. मैं पहले आपको बोल चुका हूँ कि जब मैंने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के प्रचार किया था, तब मैंने आपको पहले बोल दिया था कि मैं इसके ऊपर खड़ा रहूंगा। खड़ा रहूंगा। Then I got a blessing. तो मुझे आशीष मिली। Already I told you. पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। Hallelujah. हालेलुया। The same way I tell you, इसी प्रकार से फिर कहता हूँ, I tell you this, I'm speaking about the fear not. और मैं निडर रहने के बारे में बोलता हूँ। I tell you, you and me, we will get the great blessing. मैं आपको बोलता हूँ कि आप और मैं बहुत बड़ी-बड़ी आशीषों को ग्रहण करेंगे। Say with me. Say with me. मेरे साथ कहें। मैं, I'm going to read more Bible. मैं और वचन पढ़ूंगा। मैं सीधा हिंदी में, मैं ज्यादा वचन पढ़ने वाला हूँ। आप लोग का इतना ही आवाज है। मैं ज्यादा बाइबल पढ़ने वाला हूँ। उसी वचन में स्थिर रहूंगा। उसी वचन में स्थिर रहूंगी। उसी वचन को रख को मैं शैतान को सामना करूंगा। उसी वचन को रख के मैं शैतान का सामना करूंगी। आमीन। आमीन। उसका प्रतिफल, उसी को आशीष को मैं प्राप्त करूंगा। उसके प्रतिफल की आशीष को मैं प्राप्त करूंगी। आमीन। हालेलुया। 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 भजन संगीता 91 पाठ बताइए। 91। हाँ, खड़े हो जाइए। मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और उसके परों के नीचे में शरण पाऊंगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। क्या ना डरेगा? ना उस रात के, फिर ना से। उस तीर से, फिर से। ना उस रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से Yeah. जो दिन The को उड़ता है। the spirit of midnight spirit. और वो जो आधी रात की जो आत्मा है, The midday spirit. और वो जो दिन की आत्मा, जो Midday spirit. You know the midday spirit? आपको पता है दिन की जो आत्मा है उसके बारे में? किसी को शाम हो गया तो डर लगता है। Somebody have a problem. कुछ लोगों को ये परेशानी होती Somebody have a night problem. है। कुछ लोगों को रात को डर लगता है। See, when I was young, I accept Jesus. When I was young, I accept Jesus जब मैं Christ. जवान था, जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, Before that, उससे पहले I was, attacked with the devil. तब मेरे को शैतान का एक वार हुआ था मेरे पे, Then I'm not get sleep. और मुझे तब नींद नहीं आती थी। I used to sleep on the day time with reading comic books और मैं दोपहर के समय में सोता था कॉमिक बुक्स पढ़ते हुए, because I get a fear when I go to bed. क्योंकि मुझे डर लगता था जब मैं रात को बेड The पे spirit जाता will था। come and catch my neck and I can't speak anything. और जब रात होती थी तो फिर वो जो आत्मा थी वो आती थी और मेरे गले को जकड़ लेती थी और मैं कुछ भी बोलता था। One man of God pray for me. और एक प्रभु के दास ने मेरे लिए प्रार्थना की। Then I used to say, Pastor, मैं कहता था कि पास्टर, today I want to sleep nearby. मैंने बोला कि पास्टर आज मैं आपके बगल में सोऊंगा। I said, okay. उन्होंने बोला ठीक है। Then I slept but near the man of God. फिर मैं प्रभु के दास के साथ सोया। I was slept very good sleep. उस रात को मुझे बहुत अच्छी नींद आई। हालेलुया। In the midnight, फिर आधी रात को then he went for washroom. फिर वो रात को वॉशरूम गए। Then the meantime, और फिर उसी समय में the devil is attacking to me. फिर शैतान ने मेरे पे एक वार किया। गला दबा दिया फिर से. I was crying. मैं रोने लगा। That time I said, only me, only everybody's happy, only I'm not, get sleep. उस समय मैं कहने लगा सिर्फ मैं, सब लोग बहुत खुश है, सब रात को सो जाते हैं और एक मैं ही नहीं सो पाता। If I see the children are playing and very good and jumping, I said, oh, how the happiness is there, but I don't have a happy in my life. और जब मैं बच्चों को खेलते हुए देखता था तो मैं कहता था अरे ये बच्चे कितने खुश हैं, ये लोग कितने खुश हैं और मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है। Then I submit to God, my people. तो मैं प्रभु के अधीन हो गया मेरे लोगों। God delivered me.
परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया। Say hallelujah. हालेलुया। That's why the Psalms 91 is very powerful. इसलिए भजन संहिता 91 बहुत सामर्थी है। Amen. आमेन। Say hallelujah. हालेलुया। I have a confidence on the word. मेरे पास वचन का हियाव है। आपके पास है? मेरे पास वचन का हियाव है। मैं कह रहा हूँ मेरे पास वचन का हियाव है। मेरे पास वचन पर वो एक बंदा बताइए मैं वचन पर हियाव रखता हूँ। व्याव याव ही याव। okay okay I have a confidence on the word. You have मेरे पास वचन पर हियाव है। क्या आपके पास है? यस। confident. If my wife gets sick, if my daughter gets sick, don't 2 days before my daughter said I am sick, dad, I'm feeling fever, I take chutti, I was in the room last 2 days, I'm not feel, he's alone. 2 दिन पहले मेरी बेटी ने मुझे बताया कि पापा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मेरी तबीयत खराब है, मैंने छुट्टी ले ली, मैं 2 दिन से घर पर ही हूँ। I said don't worry, मैंने बोला परेशान मत हो, I'm going to read Bible. मैं वचन पढ़ूंगा। हालेलुया। See, my wife asked me, मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा, asked to her, उनसे पूछिए। then I say फिर मैंने कहा don't worry my daughter, मेरी बेटी परेशान मत हो, I'm going to read for you, Psalms 91 the many time. तुम्हारे लिए मैं वचन संहिता 91 पढ़ूंगा। Amen. एक साइड जो मेरा बेटी का फोटो मैंने टच किया फोन में ओपन करके, एक साइड भजन संगीता को टच किया। Amen. भजन संगीता 91 को 30 टाइम I read. How many time? 30 बार मैंने उसको पढ़ा। Amen. हालेलुया। 30 time I read. I'm not telling lie. मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने 10 30 बार पढ़ा 10 time I touched the photograph and confessed the word. और मैंने 30 बार फोटो को छुआ Then और 20 time I read the Bible. और फिर 20 बार मैंने बाइबल को पढ़ा, Because we have a confidence on the word. क्योंकि हमारे पास वचन पर हियाव है। अच्छा हालेलुया। बात, सब बोलिए मेरे पास मेरे पास भजन संगीता 91 में वचन संहिता 91 में क्या है? हियाव है। तालियां यीशु मसीह के लिए। Say glory to God. ओ परमेश्वर की स्तुति हो। अंग्रेजी में बोलो glory to God. Glory to God मतलब क्या मैडम? परमेश्वर को महिमा मिले। महिमा मिले। आमेन। सब बोले glory to God. Glory to God. बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। Come on, come on, come on, come on, come on. Speak out, speak out, speak out. बोलते रहना, बोल माइक। Glory to Take the God. mic, take the mic and Glory sing. to God. महिमा मिले। Glory, glory, परमेश्वर को महिमा Glory मिले। to God. Glory to God. glory to God, glory to Glory God. to God. Come on, Glory परमेश्वर to को God. महिमा हो। परमेश्वर को महिमा हो। परमेश्वर को महिमा मिले। 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 परमेश्वर Glory को to महिमा God. मिले। Glory to God. Glory to Glory God. to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Man. Glory to God. Amen. Glory to All God. the Old Testament, warriors, और जितने भी पुराने नियम के जो भी वॉरियर्स थे, जो योद्धा थे, they have a confidence on the word. उनको वचन पर हियाव था। Amazing. अद्भुत। You know the Daniel, he put it in the pit of lions pit. आपको पता है कि दानियल को वो शेरों की मान में डाल दिया गया था। What happened? क्या हुआ? He have a confidence. उसके पास हियाव था। मैं सोच रहा था ये कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? The another word says, और दूसरा वचन कहता है, he zipped. और उसने वो उनकी मुंह को बंद कर दिया, बंद कर- जिप कर देना, जैसे चेन बंद कर देते हैं। बैक का जिप को कैसे बंद कर या ऐसे बंद किया कैसे? हाउ? बिकॉज कैसे? वर्ड कॉन्फिडेंट। क्योंकि परमेश्वर उसको ने वचन मुझसे का हियाव। बोला, परमेश्वर करेगा। इतना ही है कलीसिया क्या? ए कम ऑन यार, परमेश्वर कुछ आपके पास कुछ बोला है तो होगा ही। Holy Spirit of God. Holy, पवित्र परमेश्वर। holy.
Come on, come on, come on. Hey, speak out. जोर से ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करें। अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। All the people, come on, come on, come on. अन्य भाषा में प्रार्थना करें। सभी लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करें। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Act like a Bible. बाइबल के अनुसार एक्ट कीजिए। Act कीजिए. Be like a Daniel. दानियल के समान बने। Be like a Abraham. अब्राहम के समान Why बने। God has given a Bible to us? परमेश्वर ने हमें बाइबल क्यों दी है? Why God has given a full Bible to us? परमेश्वर ने हमें पूरी बाइबल क्यों दी है? Some people say that there is no need of the Old Testament for us. Only we are living in the New Testament. Only read only New Testament. Not like that. Why God has given a full Bible? कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं, हमें पुराने नियम की जरूरत नहीं है, हम नए नियम में रह रहे हैं तो हमें नया नियम ही चाहिए। मगर नहीं, परमेश्वर ने हमें दोनों नियम दिए हैं, पूरी बाइबल दी है। ऐसा क्यों? Why? क्यों? Because Abraham's gone through some problem. क्योंकि अब्राहम किसी परेशानी से होकर गुजरा। Okay? But the same problem not in the Isaac go through. मगर वही सेम परेशानी इसाक के साथ नहीं अब्राहम थी। का प्रॉब्लम क्या था? There is no child. इसहाक के पास ऐसा प्रॉब्लम था? नहीं है. Okay? We can take only for the faith, और उसी प्रॉब्लम के लिए अब्राहम का मुंह उठा सकते हैं. You understand? आपको समझ आ रहा है मेरा हिंदी? हाँ? We understand? Abraham for child blessing. Abraham for क्या? Child बच्चे की blessing. आशीष के लिए। Yes. You can increase your faith and you will get. Like that, my people. इसी प्रकार से मेरे लोगों, Every character in the Bible. हर एक जो बाइबल के अंदर जो चरित्र दिखाया गया है आपको, You will go through one day. आप एक दिन उससे होकर जरूर गुजरेंगे। That day you will take the word and be confident and overcome the devil. उस दिन आप वचन पर हियाव रखेंगे और आप वो जो शैतान है उसका सामना करेंगे। कभी अब्राहम जैसे वो करना है, कभी अब्राहम जैसे करना है, कभी यूसुफ जैसे करना है, कभी याकूब जैसे करना है. That means all the entire Bible is speaking to you in a different angle. इस प्रकार से पूरी बाइबल आपसे बात करती है हर एक एंगल के द्वारा। Hallelujah. Take your Bible. अपनी बाइबल को ले लीजिए। ये बाइबल कौन बेटा नहीं? Give. No, English Bible. Take like this. ऐसे Everyone. बाइबल ले लीजिए। Okay? जो बाइबल नहीं आता है ना, शर्म आना चाहिए. Okay? வெக்கப்படணும் नहीं है. யாரெல்லாம் बाइबल को so I'm speaking Tamil. जो whoever not bringing the Bible, जो भी लोग बाइबल लेकर नहीं आते हैं, or please bring your Bible to the next Sunday service. कृपया करके अगले रविवार अपनी बाइबलों को साथ If you लेके feel आएं। shame on bringing the Bible, shame feel करते तो अगर आप बाइबल लाने में शर्म महसूस करते हैं और बोलने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, ओके, आप बाइबल लेके आइएगा. ओके, टेक योर बाइबल, टेक योर बाइबल. सो बाइबल ले लीजिए। whatever the character in the Bible, जो भी कैरेक्टर बाइबल के अंदर है, बोलिए हिंदी में. जो भी पात्र बाइबल के अंदर है, Amen. Amen. Every character हर एक कैरेक्टर is speaking to me मेरे से बात करता है, for my particular problems, मेरी परेशानियों के लिए, मेरा particular situation. मेरी परिस्थितियों के लिए। I'm going to read the Bible मैं बाइबल को पढ़ूंगी and take my word और अपने वचन को लूंगी and take my faith. और अपने विश्वास को लूंगी I'm going to stand on the word. और मैं वचन पे खड़े रहूंगी I'm going to get confident on the word. और मैं वचन पर हियाव बांधूंगी And I'm going to resist the devil. और मैं शैतान का सामना करूंगी। The word says the devil flee from you. और वचन कहता है कि शैतान तुम्हारे से दूर भाग जाएगा। Amen. ऐसा डैनियल किया, ऐसा क्या किया? अंदर पिट में डाल दिया, बोले ये सारा सिप लगा लो, सब लोग सिप कर दिया, सारे शेर क्या कर दिया? बंद कर दिया, मुंह मत खोलना भाई. ये अच्छा सा तकिया बन के क्या कर रहा था? सो रहा था. आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग. मैं नहीं समझ पा रहा था। छोटा सा इस दुनिया में कोई भी गलत रोड पे सड़क में कुछ बोल रहे तो हमको कितना दुख हो जाता है, फिर रात को नींद नहीं आता है. बट ये बंदा कैसे सो रहा है? दैट मींस कॉन्फिडेंट ऑन द वर्ड. इसका मतलब है कि वो वचन पर हियाव रखता था। whether left side or right side and 10,000 and 1,000 and 10,000 बेशक maybe. दाएं और 10,000 बाएं और 10,000 हो, और
दूसरी ओर 1000 गिरे, don't get fear. मत डरिए, You will stay. You will stay. आप बचे रहेंगे। Amen. बच्चे रहेंगे। कोरोना में बच्चे नहीं है? अब we are how many death happened? कितने लोग मरे थे कोरोना के समय में, But we are here. मगर आज हम यहाँ पर हैं। Come on, everyone stand up and